students, I am Atul Rana and I am back with the next video lecture for class 11 chemistry. For class 11 chemistry, okay. This is the video lecture 3. This is the video lecture, 4. This is the video lecture 4 for the chapter 2. For the chapter 2. This is the video lecture 4 for the chapter 2 of class 11 chemistry. That is structure of atom. That is structure of atom. Okay. So earlier we have studied the discovery of electron. Okay, by cathode ray tube experiment. Then we studied about the charge to mass ratio by J.J. Thomson, and then oil drop experiment by Millikan. Okay. So in the today lecture I will tell you about discovery of proton. Discovery of proton. Okay. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो जैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की इन द कैथोड रे ट्यूब, ओके, वैसे ही डिस्कवरी हुई थी इसकी भी. सेम डिस्चार्ज ट्यूब वाज देयर, सेम वोल्टेज वाज देयर, ओनली द डिफरेंस वाज देयर इन प्रेशर. जो वैक्यूम पंप था उसमें प्रेशर एडजस्ट किया था, बाकी एवरीथिंग वाज सेम. सो वी विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ओके, एपैरेटस फिर से देख लें. व्हाट वाज द एपैरेटस? यहां पे one discharge tube was there. Okay, one discharge tube was there. There are some differences between the apparatus used for proton and electron. Okay, so यहाँ पे क्या था? Anode was not perforated. Here anode was regular. Anode was not perforated. Cathode was perforated here. Here cathode was perforated. In cathode ray tube experiment, anode was perforated. Anode means positively charged. Here cathode was perforated. Perforated है, ठीक है? नेगेटिव, पॉजिटिव. ज्वाइन हो गया, एनोड कैथोड आ गए, ठीक है. देन अगेन दिस वैक्यूम पंप वाज यूज्ड. दिस वैक्यूम पंप वाज यूज्ड. ओके, हियर वोल्टेज इज सेम 10,000 volts in this cathode ray tube experiment, which was for the discovery of electron. Voltage was same 10,000 volts. Okay, same voltage was there. Now here cathode is perforated. Okay, in the other experiment anode was perforated. Now in the previous cathode ray tube experiment for the discovery of electron, this the screen behind anode was covered with a phosphorescent material. Okay, but now in this case screen behind, this tube behind cathode is perforated. This tube behind cathode is perforated. Perforated is covered with phosphorescent material, that is zinc sulfide. Zinc sulfide. Okay, it is covered with phosphorescent material like zinc sulfide. Got it? This was the experiment. Okay. Now the second basic difference is, which I want to share with you, in case of electron, where we discovered electron, and in case of proton, there is a basic difference. During the discovery of electron, pressure was almost 10-4 atmosphere. बहुत कम प्रेशर था. ओके, यहां पे प्रेशर रखेंगे 10⁻⁻1 एटमोस्फेयर. 10⁻⁻4 एटमोस्फेयर, 10⁻1 एटमोस्फेयर में ज्यादा प्रेशर कौन है? ज्यादा प्रेशर है ये वाला. ये वाला प्रेशर क्या है? इससे ज्यादा है. ठीक है. अब जैसे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं. यहां पे कम प्रेशर लगाया था, बहुत ही कम प्रेशर था, 10⁻⁻4 एटमोस्फेयर मींस 0.0004 एटमोस्फेयर. बहुत कम प्रेशर लगाया था. जो जितना कम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर जितना कम करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे. ओके, तो हमें कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट गैस के मॉलिक्यूल्स, बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए थे. वी डोंट रिक्वायर गैस मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड इन केस ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमने कहा कि प्रेशर बहुत कम लगाया. बहुत कम प्रेशर होगा तो गैस मॉलिक्यूल निकल जाएंगे. ज्यादा प्रेशर से पास आते हैं ना, कम प्रेशर होगा निकल गए. यहां पे हमने प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगाया है. लगाया कम है, कंपैरेटिवली ज्यादा लगाया है. ज्यादा क्यों लगाया है? क्योंकि बीच में चाहते हैं गैस के कुछ मॉलिक्यूल रह जाए. अगर प्रेशर बहुत कम कर देते तो वैक्यूम पंप सबको बाहर निकाल देता. पर हमने थोड़ा प्रेशर ज्यादा रखा है पिछले एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में, ताकि बीच में गैस के मॉलिक्यूल रह जाए. गॉट इट? ओके, नाउ चल पड़ा. सेम प्रोसीजर हैपन. कैथोड रे चल पड़ी. कैथोड रे चल पड़ी. ओके, जैसे हमने वोल्टेज चालू की, कैथोड रे चल पड़ी. बीच में एटम आ गए. पिछले केस में एटम नहीं आते थे. क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत कम था तो एटम बाहर निकल गए सारे. प्रेशर इस बार थोड़ा ज्यादा है तो एटम थोड़े पास पास है, तो बीच में एटम आ गए. अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं सेपरेटली. ये कैथोड रे जा रही है, बीच में एटम आ गया. एटम आ गया, ये दे आर मूविंग वेरी फास्ट.
मैंने बताया दे हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, बहुत स्पीड से चलती हैं। तो जैसे इससे टकराएगी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये गैस के एटम में बीच में कोई ना कोई गैस होगी, जैसे ही ये कैथोड रे आएगी, दिस इज कैथोड रे, कैथोड रे चल पड़ी, हमने वोल्टेज ऑन कर दिया, कैथोड रे चल पड़ी। तो कैथोड रे विल स्ट्राइक दिस, कैथोड रे विल स्ट्राइक दिस एटम, गैस का एटम है उस पर स्ट्राइक करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये आगे अपनी कैथोड रे बना लेगा। दिस विल फॉर्म इट्स ओन कैथोड रे, बट what will be left in behind? Positively charged atom, पॉजिटिवली चार्ज एटम रहेगा ना। अब इसमें से देखो, अब मैं टेल यू, ये एटम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एटम के ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। नाउ इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज एटम। नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज कैथोड। Now this positively charged atom will move towards negatively charged cathode, और पीछे आधे से निकल जाएंगे, पीछे स्ट्राइक में जाएंगे। So these positively charged atoms create anode rays। अभी तक डिस्कवरी प्रोटॉन नहीं हुआ है, this positively charged atoms create anode rays। ओके, ये कैथोड से निकली, बीच में गैस के एटम थे, ड्यू टू हाई प्रेशर गैस के एटम से टकराई, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, गैस के एटम को प्रोटॉन में बदल दिया। नाउ प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज विल मूव टुवर्ड्स कैथोड and anode ray is created। ठीक है, बिकॉज एनोड वाली साइड से आ रही है, एनोड रे इज क्रिएटेड। ओके, सो इन दिस वे एनोड रे वर डिस्कवर्ड। ओके, एनोड रेज आर, so what can you say? Anode rays are positively charged rays, positively charged rays कैसे बनती हैं? ये जो रे है, कैथोड रे तो चलो इलेक्ट्रॉन से बन गई, अब एनोड रे किससे बनेगी, गैस के एटम से, एटम से बनेगी पॉजिटिवली चार्ज एटम। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब इसको ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज एटम्स एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, एंड मूव towards cathode, they are produced by not protons, here I am not talking of proton की अभी बात नहीं कर रहा हूं, they are produced by positively charged atoms, positively charged gaseous atom and move towards cathode। so this was the discovery of anode rays। एनोड डिस्कवर हो गया, देखो कैथोड रेज चली, बीच में गैस के एटम थे, क्यों, प्रेशर हमने कम ज्यादा रखा था इसलिए गैस के एटम थे, कैथोड में गैस के एटम से टकराई, गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, गैस के एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दोज पॉजिटिवली चार्ज गैसेस एटम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड व्हेन दे मूव दे क्रिएटेड अ वेव, दे क्रिएटेड अ रे दैट इज नोन एज एनोड रे, दे क्रिएटेड अ रे दैट इज नोन एज एनोड रे। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल पेंडिंग। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन का चार्ज कैसे पता लगा था, मास कैसे पता लगा था, दैट आई विल डिस्कस। ओके, ये पता लगा एनोड रे क्या है, they are not created only by protons, they are created by positively charged atoms, they are created by positively charged atoms। got the point? okay, write it down। so now anode rays were discovered। अब हमें प्रोटॉन के बारे में जानकारी लेनी थी कि what is the proton, what is the mass of proton and what is the mass of proton and what is the charge of proton। okay, so इन्होंने क्या किया, जो this cathode they have taken, कैथोड एंड बीच में दिस एनोड, दिस वाज कैथोड एंड एनोड। ओके, सो बीच में जो गैस ले ली थी दैट वाज हाइड्रोजन गैस, दैट वाज हाइड्रोजन गैस। ओके, यू नो इन हाइड्रोजन, ओनली इन हाइड्रोजन एटम व्हाट इज देयर, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर। ओके, एंड ओनली वन प्रोटॉन इज देयर, ओनली वन प्रोटॉन इज देयर। ओके, तो हाइड्रोजन एटम था ये, हाइड्रोजन गैस इन्होंने बीच में ले ली, यहां से क्या है, कैथोड रे स्ट्राइक किया। ओके, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो नाउ हाइड्रोजन इज लेफ्ट विथ ओनली वन प्रोटॉन, हाइड्रोजन लेफ्ट विथ ओनली वन प्रोटॉन, सो H पॉजिटिव कैन बी कंसीडर्ड एज अ सिनोनिम फॉर वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन भी नहीं है, कोई न्यूट्रॉन भी नहीं है। तो यहां पे हमने अगर गैस कौन सी ले लेते, हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस ले ले, तो जब ये कैथोड रे हाइड्रोजन एटम को हिट करेगी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, देयर इज नो न्यूट्रॉन विद इट।
तो जब ये हिट करेगी तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नाउ H पॉजिटिव मींस एक सिंगल प्रोटॉन। ओके, तो वैसे इन्होंने कर लिया, ठीक है। और वो लेके इन्होंने हाइड्रोजन गैस लेके इन्होंने क्या निकाल दी, E/m रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो फॉर हाइड्रोजन गैस। तो मतलब एक प्रोटॉन निकल गई, वो निकली इनकी 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ये निकल गई इनकी चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। जब इन्होंने हाइड्रोजन पे चार्ज पता किया, मतलब H पॉजिटिव पे एक प्रोटॉन पे चार्ज पता किया, तो चार्ज निकला इनका सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज इनका कितना निकल गया, मतलब प्लस में निकला था, ठीक है। चार्ज इनका प्लस में निकल गया। सो मास निकालना आसान रह गया। मास कैसे निकलेगा, E/m दैट इक्वल टू चार्ज कितना निकला इस पे 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस का था डिवाइड बाय 9.58 इंटू 10⁴। ओके, तो इसको करके ऑलमोस्ट ई से कैंसिल आ गया, मास आ गया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इतना मास आ गया हाइड्रोजन एटम का या वन प्रोटॉन का, H पॉजिटिव का वन प्रोटॉन का। तो वन प्रोटॉन का मास आ गया इतना। ये एक्सपेरिमेंट सेम थे। चार्ज मास रेशियो के लिए तुम्हें मैंने उसमें कैथोड रे में बता दिया था कैसे करके लेते हैं, और चार्ज निकालने के लिए ऑयल मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रोटॉन के ऊपर हाइड्रोजन गैस लेके चार्ज में मास रेशियो निकल गई, जो चार्ज में मास रेशियो निकली है हाइड्रोजन गैस की थी। प्रोटॉन का हमने चार्ज निकाल लिया, तो उसका चार्ज निकाल लिया ऑयल मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। चार्ज आ गया, चार्ज में मास रेशियो होगी तो मास भी आ गया, तो प्रोटॉन का मास अपने पास आ गया, प्रोटॉन का मास आ गया, प्रोटॉन की चार्ज में मास रेशियो आ गई और प्रोटॉन का चार्ज भी आ गया। इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, यहाँ पे प्लस है। ओके, नाउ इसमें तुम्हें मैंने कैथोड रे में एक बात बताई थी कि दैट चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैथोड रे इज सिमिलर फॉर ऑल गैसेस। तुम इसके अंदर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अंदर कोई भी गैस ले लेते, ईएम की वैल्यू सबके लिए 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम आनी थी, बट ईएम रेशियो फॉर एनोड रेज कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। बिकॉज एनोड रेज आर क्रिएटेड बाय पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, तो हर एटम का मास अलग होगा, तो ईएमआई रेशियो E/m रेशियो मास चार्ज टू मास रेशियो सेम नहीं आ सकती। अब चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज की किसके लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रेज बनाते हैं, तो उनका मास क्या था, फिक्स था, चार्ज फिक्स था, तो उनकी E/m रेशियो फिक्स थी। तो दिस वाज ऑल दिस व्हाट टू से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।